Hello everyone, welcome to Ranker's Approach to Labashna. Today we are going to start with a new question paper where we will learn the traps which UPSC use to make the statements, make the questions wrong. And some of them are listed in front of you, such as exchange of institution, where sometimes institutions like or the offices like president or governor, they are exchanged in place of each other. And in second trap, it is the ministry is given wrong. For example, in certain question there is a particular topic and there is a ministry in that association, and that ministry is given generally incorrect. तो दूसरे ट्रैप में यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाता है. थर्ड में क्या है कि मोर फैक्ट, वेन एवर देयर विल बी मोर देन वन फैक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देन इट इज इजी टू मेक रॉन्ग, बिकॉज किसी भी फैक्ट को अलग करके tweak करके you can make the completely you can make the statement completely wrong. So this is something more the facts easy to make wrong. Pairing of statements. With this we will learn that how to pair the statements to derive the question, and it also includes one thing that positive rows for positive and negative rows for negative. Exaggeration extension by UPSC. Sometimes UPSC deliberately exaggerate per particular statement, or it extend a particular statement deliberately, and that extension makes the complete statement incorrect. हमने 2018 वाली वीडियोस में भी देखा था कि भाई कैसे यूपीएससी deliberately extend करता है, exaggerate करता है. And in these videos for 2019 we will learn कि भाई यहाँ भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हम देखेंगे यूपीएससी कैसे exaggerate कर रहा है. And there are other logics as well, and which we have covered for when we were doing 2018 का video, the introduction की video, and these things which we will be learning in 2019 as well. So this is the paper of 2019 and we are going to start. If you are getting this video in your YouTube feed, then you must subscribe the channel. Otherwise it is not possible that you do not get these videos again because of the YouTube algorithm. So without wasting any further time, welcome to prelims aptitude mastery. Let's continue it. 2019 का पेपर है. So फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू बस जैसे छोटी सी अनाउंसमेंट है, इफ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो, पहली बार आप देख रहे हो तो भाई पहले इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं इस पे, एंड 2018 का जो पेपर था उसे 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है. इफ यू आर न्यू इन दिस सीरीज, न्यू लाइक इन दिस वीडियो, सो यू मस्ट वॉच दीज 5 वीडियोस फर्स्ट. स्टार्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट एक थोड़ा जनरली एडवाइस देने पे दिस वीडियो लाइक यू शुड स्टार्ट विद दिस कि पहले 5 पार्ट देख लो, एंड यू हैव डन, इफ यू हैव डन दीज 5 पार्ट्स and you are continuing with the series, then I just like told you in the last video, before proceeding with 2019, you must watch, you must solve the paper of 2019 by yourself before, and after that only you should watch these classes. So if you haven't solved the paper by yourself, then don't watch it today. First solve the paper. Let's try it by your own, because 24 मई को पेपर खुद देना है, तो उसके बाद ही फिर लाइक ये 2019 वाली क्लास आपको अटेंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. फिर with reference to rural India, what is or are the differences between जागीरदार and जमींदार. भाई जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या डिफरेंस था? Zagirdars were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas zamindar were holder of revenue rights without any obligation to perform any duty other than revenue collection. भाई ठीक है, जागीरदार के पास उनके पास जुडिशियल पावर्स थी, ये पुलिस ड्यूटीज थी, बट जमींदार के पास सिर्फ रेवेन्यू को मतलब उनको होल्ड करना था, उनको रिसीव करना था, उसके अलावा कोई और ड्यूटी नहीं थी. भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई पूरे इतने बड़े इंडिया में और ब्रिटिशर्स किसी जमींदार को कोई ड्यूटी ना दे. तो भाई इट बिकम्स रॉन्ग. एंड ऑल्सो आई व्हेन आई टोल्ड यू कि भाई इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि जब भी ऐसे यूपीएससी वेरस लगा कंपेरिजन करें, सो यू मस्ट बी कॉशियस कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो ट्रैप हो रहा है. एंड बस अपने आप सोच लो यार, जमींदार है, इंडिया इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं तो ऐसा जोन तो होगा ना कि जैसे शायद पुलिसिंग राइट्स या कुछ और राइट्स, जो ये ड्यूटीज हैं जो यूपी ने ब्रिटिशर्स ने जमींदार को दिए होंगे कि भाई आपको रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ ये भी करना है. सो इट मतलब ये पढ़ के ही ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए.
So by this also it becomes wrong. Land assignment to Jagirdar were hereditary and revenue rights of Zamindar were not hereditary. भाई पहली बात तो अब इसमें वही बात है ना, तो ये तो इसमें भी कंपैरिजन कर रहा है एंड देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव रेड इन द स्पेक्ट्रम. थोड़ा ये है कि भाई इसमें आपको स्टैटिक नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट है एंड थोड़ा सा ये कि भाई अवेयरनेस की भी रिक्वायरमेंट है विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड. लैंड असाइनमेंट तो जागीरदार वर हेरिडिटरी. भाई एक पार्ट तो आप हेरिडिटरी बोल रहे हो कि भाई लैंड असाइनमेंट्स तो हेरिडिटरी हो रहे थे बट रेवेन्यू राइट जमींदार के हेरिडिटरी नहीं थे. पहली बात तो इसमें कंपेरिजन हो रहा है. So if there is any comparison, then it is highly possible then that statement is incorrect. And if you are unsure whether this statement is incorrect and if it is in a comparative sense, then I would suggest you go with the narrative part that it can be wrong. So if I would have been given attempting this question like in 2026 and I wasn't aware कि भाई ये question statement ठीक है या नहीं है, तो I would have considered it wrong and I would have marked it D. And D इसका वैसे आंसर भी है. So yeah, question number 2 पे आते हैं. With reference to land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? The एक छोटी सी बात है, like I want to tell you, instead of reading the options from A, let's start reading options from D. इसके पिछला लॉजिक है because sometimes when UPSC like examiner frame the question ना, तो वो याद रखते हैं भाई अपनी एनर्जी डाल देते हैं शुरू वाले क्वेश्चंस में, शुरू वाले ऑप्शंस में, और लास्ट में आते आते उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है. देखो 4 ऑप्शंस बनाने हैं जिसमें से 3 रॉन्ग है और एक सही है. भाई सही वाला तो क्या है कि कॉपी पेस्ट मारना होता है कि भाई यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया, बट 3 गलत बनाने हैं तो उसमें एनर्जी जाती है. तो इट्स हैपन्स कि भाई या तो यूपीएससी एग्जामिनर सही वाले तो शुरू में डाल दे और गलत वाला तो लास्ट में डाल दे ऐसे. या फिर मतलब मेजरली क्या होता है जब ऐसे ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यूपीएससी राइट आंसर ना जनरली लास्ट में डालता है. ये लास्ट में डालता है, मिडल में डालता है. तो इट इज पॉसिबल कि भाई लास्ट तक आते आते यूपीएससी एग्जामिनर की एनर्जी खत्म हो जाए और क्या पता वो हमें आंसर लास्ट में मिल जाए. फॉर एग्जांपल एक हमने 2018 में वो प्रीलिम्स के पेपर में अपना कहते हैं ये अपना प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन सोल्व किया था कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, आंसर था फोर्थ में. बच्चे भी डरते हैं भाई, शुरू में अगर ऐसा कुछ रिलेटेड मिल गया तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं, वहीं मार्क किया चल दिया आगे, पूरा पढ़ते नहीं है. सो जस्ट टू अवॉइड दो सिली मिस्टेक्स, जस्ट टू अवॉइड दो ब्लंडर, लेट्स रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम बिलो कि भाई कोई पॉसिबिलिटी ही ना रहे हमारा क्वेश्चन गलत करने की. सो विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जाम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स. भाई लैंड रिफॉर्म्स ने कोई एग्जाम्पशन लिमिट ही नहीं दी थी. भाई ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें जब हम पढ़ते हैं. चलो बाकी फिर भी देखते हैं. इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन. भाई ऐसा तो मतलब अभी तक इंडिया में कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं और उसके कारण जो है मतलब कैश क्रॉप से कल्टीवेशन बढ़ गया है. नहीं यार, ऐसा तो मतलब ये तो बहुत अपसर्ड सा है. द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस. चलो ये थोड़ा ठीक भी लगता है कि भाई ऐसा कुछ था कि भाई लैंडलेस को लैंड देनी है. और ये पढ़ते हैं द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स. तो जो सीलिंग लॉज थे वो फैमिली होल्डिंग्स के ऊपर थे, अब इंडिविजुअल होल्डिंग्स पे नहीं थे. एक्चुअली उल्टा है, तो इट बिकम्स रॉन्ग. सो या तो ऑप्शन हो रहा बी या ऑप्शन हो रहा डी. अब ये कि भाई ये लैंड रिफॉर्म्स बोल रहा है कि पर परमिटेड नो एग्जम्पशंस टू द सेलिंग लिमिट्स. देखो भाई लैंड रिफॉर्म्स में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स भले सेंटर ने इनिशिएट किए थे बट लॉज कौन बनाए रहा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाए रहा, बिकॉज लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है ना लैंड. अगर स्टेट को लॉज बनाने हैं और उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो इट इज पॉसिबल ना कि भाई इतने सारे स्टेट से कोई ना कोई तो एग्जम्पशंस प्रोवाइड कर ही सकते हैं. किसी भी कारण से एग्जम्पशन हो सकती है, किसी को फेवर करना हो या कुछ एक्चुअली में रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे एग्जम्पशंस को परमिट करना. फॉर एग्जांपल कॉफी कल्टीवेशन है या टी कल्टीवेशन है, भाई उसके लिए लैंड बहुत बड़ी चाहिए होती है. लैंड मतलब शायद जितनी लिमिट्स में है ना, जितनी लैंड सेलिंग्स की लिमिट में थी उससे भी बियॉन्ड लैंड चाहिए होती है. तो भाई वहां तो एग्जाम्पशन देना पड़ेगा. तो उस सेंस में भी डी बिकम्स रॉन्ग. एंड इफ ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग एंड वी हैव आर लेफ्ट विद बी, देन बी इज दिस. एंड अब इसमें ये थोड़ा ये आ रहा कि भाई ऑल द लैंडलेस के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा एक्सट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं. तो भाई मैंने आई टोल्ड यू कि इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप द वर्ड्स
सिर्फ वर्ड्स नहीं उठाने, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस। एसेंस क्या है पूरी स्टेटमेंट की, पूरे क्वेश्चन की, हमें वो भी देखनी है। एंड इट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर। वेलफेयर में अब ये कि भाई तीन ऑप्शन दूसरे एलिमिनेट हो रहे हैं, एक एक ही ऑप्शन बचा है, एंड दैट इज ऑल्सो इन द लाइन विद द एसेंस में है, उसका वेलफेयर निकल रहा है मतलब। सो इट इज नॉट कि भाई वो गलती हो रहा, दैट इज पॉसिबल कि भाई वही आंसर हो, इवन इफ इट इंक्लूड सम सर्टेन एक्सट्रीम वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो भाई अगर ये आपको आता है, वैसे तो ये ना जनरली हम पढ़ते हैं, मतलब इस ऐसी ऐसी रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, ये तो स्टैटिक मटेरियल में या करंट अफेयर्स के मटेरियल में बहुत इजीली मिल जाती है, एंड इसका आंसर जो है अपना वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें कुछ ऐसा है कि भाई आता तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, बट वही है कि थोड़ा अगर लॉजिक लगाना है तो भाई वर्ल्ड और वर्ल्ड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस भाई अल्टीमेटली 50-50 पे भी आते हैं, तो यहाँ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ला रहे हैं या वर्ल्ड बैंक ला रहे हैं। बस ये चीज़ें थोड़ा यूपीएससी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया या आईएमएफ हो गया, तो यूपीएससी के लिए ये थोड़े फेवरेट है। तो इन केस यू हैव टू चूज बिटवीन दीज थिंग्स, सो यू कैन ट्राई। बट ये ठीक है भाई, प्योरली एक रिस्क है इसके अंदर कि इफ यू आर श्योर ओनली देन यू गो विद दिस, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। Question number 4. Consider the following statement about the Charter Act of 1813. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. चलो भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। uh, ठीक है। It asserted the sovereignty of British Crown of the Indian territories held by the company. भाई ये तो बात हो ही रही थी कि भाई ब्रिटिश शेयर्स ने जो अपनी ईआईसी थी, उसने जो कंपनीज, जो टेरिटरीज इंडिया में होल्ड की हुई थी, उसके ऊपर तो भाई ब्रिटिशर्स ने अपनी सॉवरेनिटी असर्ट की थी, और वो शुरू हो रही थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद से। तो सेकंड तो ठीक है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये भी कंप्लीटली ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंड टू तो ठीक है, अब थर्ड का हमें पता नहीं है। देखो, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये बोल रहा है कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेवेन्यू कंट्रोल करना शुरू किया था। बट हम पढ़ते हैं कि यार ईआईसी के पास अभी भी कमर्शियल फंक्शंस थे, दे हैव टू प्रेजेंट रिपोर्ट्स टू, जो अपनी कमर्शियल जो रिपोर्ट्स हैं उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी पड़ती थी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे डायरेक्टली कंट्रोल किया था। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ समथिंग नॉलेज प्लस एप्लीकेशन। इस दो क्वेश्चन स्टेटमेंट में नॉलेज चाहिए, बट इसको सोचने के लिए थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा उस नॉलेज को, बिकॉज हम ये पढ़ते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो वो रिपोर्ट सबमिट करनी है फॉर लाइक लाइक इवेल्युएशन पर्पज और फॉर द अकाउंटेबिलिटी पर्पज। बट हम कहीं भी ये नहीं पढ़ते कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्टली उस रेवेन्यूज पर कंट्रोल किया था। तो दिस बाय दिस लॉजिक दिस बिकम्स रॉन्ग। अभी पढ़ने में तो बहुत इजी स्टेटमेंट है कि भाई द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई इसको कुछ गलत बनाया गया है, मतलब इसको कुछ एग्जेजरेशन करके या कुछ इसमें फैक्ट डाल के गलत बना दिया। ठीक है, मतलब जिसको थोड़ा एसेंस पता है उस टॉपिक का या उस थीम का कि भाई चार्टर एक्ट ऑफ 1883 में क्या हुआ था, तो 1813 में क्या हुआ था, तो उस बेसिस पे कि भाई ये थोड़ा वहां से सॉल्व होना इजी हो जाएगा। सो आई वुड से कि भाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज प्लस एप्लीकेशन, एंड yeah, there will be certain questions like that only. So with practice you will be able to solve them. Otherwise अगर चलो ठीक गलत है, हो भी जाता है, तो हमें भाई 100% नहीं चाहिए। देर विल बी a certain रेंज ऑफ क्वेश्चन विच वी कैन मेक इनकरेक्ट। सो इतना सोचना नहीं है इन क्वेश्चंस के बारे में। बट या, आई वुड अगेन रिपीट वन थिंग दैट static is the king. Now let's come to question number 5. With reference to Swadeshi movement, consider the following statements. It contributed to the revival of indigenous artisans, crafts and industries. भाई स्वदेशी मूवमेंट है, पहली बात तो इंडिजिनस चीजों को अपनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा आपको एसेंस होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट क्या होती है। एंड अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो भाई इस एप्टीट्यूड वीडियोस का आपके लिए कोई फायदा नहीं, बिकॉज फाउंडेशन थोड़ा पढ़िए। तो हर चीज में एप्टीट्यूड के साथ क्वेश्चन नहीं होते, कुछ चीजों में स्टैटिक भी चाहिए होता है। स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है चलो। स्वदेशी क्या है कि भाई इंडिजिनस चीजों को अपनाना है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज की कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिजन्स, क्राफ्ट एंड, भाई ठीक है, एसेंस इसकी अच्छी है, इसकी एसेंस पॉजिटिव है एंड स्वदेशी के कंटेक्स्ट में जा रही है, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट।
दूसरा कह रहे भाई द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। भाई ये पॉजिटिव चीज बात कर रहा हूँ, पहली बात तो ठीक है, इसमें एक इंस्टीट्यूशन है जो फैक्चुअल चीज है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग एसेंस। अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है स्वदेशी मूवमेंट में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ये शायद कभी और एस्टेब्लिश हुआ था, सो यू कैन गो विद कि भाई ये गलत हो रहा। बट इफ यू आर नॉट श्योर कि भाई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, देन यू मस्ट कंसिडर, बिकॉज कभी भी जो नेशनल मूवमेंट्स होंगी ना, अरे उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रहा है, यूपीएससी उस नेशनल मूवमेंट को प्रो इंडिया ही दिखाएगा। प्रो इंडिया सेंस की भाई इंडियंस ने वो इनिशिएटिव्स लिए थे, इंडियंस के वो इनिशिएटिव्स थे, तो उस बेसिस पे वो प्रो इंडियन हो रहा। एंड देर इज नो पॉइंट कि भाई जब हम इंडिजिनस की बात कर रहे हैं, जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो वी वुड हैव टॉल्ड उस टाइम पे तो एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ब्रिटिशर्स भी अपनी कमिटीज बना रहे थे, एंड इंडियंस वर आल्सो लाइक इन द दे वर डिवाइडेड, लाइक मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इनके बीच में डिवीजन चल रही थी, इनके बीच में जो फ्रिक्शन चल रहा था, एंड दे वर आल्सो लाइक डिवाइडेड ऑन एजुकेशन लाइंस। बट स्वदेशी वाज समथिंग विच बस कि भाई ये यहाँ भी यूनाइट हुए थे, एंड उस बेसिस पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कि भाई ब्रिटिशर्स के स्कूल्स को, उनके कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को बॉयकॉट करना है, एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन आवर नेशनल एजुकेशन, आवर लाइक द इंडिजिनस वाला सिस्टम था। तो उस बेसिस पे भी आंसर इसका सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, भाई ये मूवमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके लीडर्स कौन कौन है, तो हमें ये बताना है। अभी ये कि भाई आपने ये पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। बस एक जनरली हमें चीज़ पता होती है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नहीं करे, भाई ये तो मतलब बच्चा बच्चा बता दे रहा है यूपीएससी का कि भाई ये किसकी है। तो थर्ड तो ठीक है, यानी कि या तो सी हो रहा या डी हो रहा, यानी कि टू कॉमन है तो टू भी ठीक हो रहा। अब ये कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अब देखो इस चीज में ना यार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई या तो गांधी जी ने निकाली है या फिर ये अम्बेडकर जी ने निकाली है। व्हेन आई रेड द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था कि भाई ये शायद अम्बेडकर जी ने निकाली है, एंड इसका आंसर आई मार्क सी देन। बट जब मैंने देखा कि भाई ये अम्बेडकर जी नहीं गांधी जी की है, तो इसका आंसर था वो डी था। तो दिस इज समथिंग विच यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेज। तो अगर स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रहे हो तो भाई ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई एप्टीट्यूड लगाने वाली कोई बात नहीं है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, आई मीन चारों में से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है? चहूदड़ो, कोटदीजी, सोहारूड़ा एंड देसलपुर। ठीक है भाई। चलो, ये थोड़ा नॉलेज वाला क्वेश्चन भी है। अब इसमें एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ, इसमें ट्रिक आएगी कि यूपीएससी कैसे हेल्प करता है एस्पिरेंट्स की। हड़प्पन साइट, चाहूदड़ो तो है जो हम पढ़ते हैं, तो चाहूदड़ो तो कैन नॉट बी एन आंसर। कोट दीजिए आमरी एक साथ पढ़ते हैं, कोट दीजिए आमरी, ये भी आंसर मतलब पॉसिबल नहीं है कि भाई ये हड़प्पन साइट नहीं है। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है भाई सोहारूड़ा या देसलपुर, ये तो सोहारूड़ा हो रहा या देसलपुर हो रहा, भाई इनमें से कंफ्यूजन होगी। अब क्वेश्चन नंबर एक बार 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इन रान्य अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोन विद द स्टोन, भाई इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। ऑप्शन देखो, कन्नन हली, सांची, शहबाज गढ़ी, सोहारूड़ा। भाई ये अशोका के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दे रहे, मतलब 4 ऑप्शंस दे रहे हैं। तो सोहारूड़ा इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद अशोकन, लाइक अशोका पीरियड या अशोका के साथ में उसका एसोसिएशन है। अब ऐसा नहीं हो रहा कि भाई सिर्फ सोहारूड़ा का अशोक से ही एसोसिएशन है, क्या पता आईबीसी से भी हो। बट जनरली इट इज ऑब्जर्व कि यूपीएससी समटाइम्स ट्राइव्स टू हेल्प। कैसे हेल्प करना है? थे भी एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये जैसे ये है ना, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी 2023 में जब हम आएंगे तो मैं वहां दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन का आंसर था कॉन्गो, डीआरसी था, जिसकी कॉपर के लार्जेस्ट रिजर्व किसमें है, उसका आंसर था डीआरसी। उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैमरून का जो अपना बेसिन क्या है उसमें कौन कौन सा आता है, तो आंसर वहां दिया हुआ था। तो यूपीएससी ट्राइज कि भाई आगे जैसे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, तो उसमें भी आई विल ऑल्सो टेल यू कि समटाइम्स अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, जस्ट चेक द इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन। इमीडिएटली 2023 में क्वेश्चन था डीएनए के ऊपर, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, और एक क्वेश्चन और था, तो उसमें भी यूपीएससी ने हेल्प, लाइक इनडायरेक्टली हेल्प किया था कि भाई ये आंसर होगा। एंड दिस इज अ पैटर्न विच यू कैन यूज
एंड इसका आंसर वैसे सोहा रूड़ा है, बट इन जस्ट आई वांट टू टेल यू कि भाई समटाइम्स इफ यू स्टक कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है ऐसे सिंगल स्टेटमेंट वाले में, तो जस्ट रैंडमली चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहां से कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता. सो सोहरुड़ा इज एन अशोकन साइट. विद दैट ऑल्सो आई कैन मार्क कि भाई हड़प्पन तो नहीं हो रहा वो. तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा सी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. चलो ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन इज रानो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोन विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका. तो भाई रानो अशोका कौन से उसमें स्कल्पचर में मेंशन है जहाँ पर अशोका का पोर्ट्रेट भी दिया हुआ है. तो भाई अब ये क्वेश्चन है कि ये तो चलो ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो दिस इज केपेबल. तो वैसे इसका आंसर है टनल हली. ये है कि भाई अभी इसमें ना ये कोई चीज़ नहीं बोलूंगा मैं कि सांची एस से दिया हुआ है, शहबाज गढ़ी एस से दिया हुआ है, सोहारोड़ा एस से दिया हुआ है. तो यूपीएससी को क्या एक्साइटमेंट थी कि भाई टनल हली डालना, कुछ एस से डाल देता. देखो, आंसर की के बाद तो कुछ भी मर्जी डाल दो. आंसर की के बाद तो कुछ भी ट्रैप बता दो, कुछ भी लॉजिक बता दो, इट इज पॉसिबल. बट रियल एग्जाम में ऐसी सब चीजें बताना या इसको चीज को अप्लाई कर पाना, इट रिक्वायर्स टू मच कॉन्फिडेंस. भाई इतनी रट पावर चाहिए, इतना अच्छा लग चाहिए कि भाई आपने ऐसा लॉजिक लगाया और उससे क्वेश्चन ठीक हो गया. सो आई वुड सजेस्ट कि भाई ऐसे लॉजिक्स में मत आना. सच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्ट लाइक दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व देम विद द नॉलेज. इफ यू हैव द नॉलेज देन गो विद द नॉलेज, अदरवाइज स्किप सच क्वेश्चंस. बट ठीक है, कोई डेयरिंग है, कोई बिल्कुल ही भाई रिस्क लेना ही है मेरे को अच्छे से, तो यस उन उस सिचुएशन में लिया जा सकता है रिस्क. बट आई वुड रिकमेंड कि भाई ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ठीक है, वरना इनको स्किप करना. तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. मैनी विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म. तो महायान बुद्धिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं. तो बेसिकली पता है कि भाई जैसे हीनयान था, एक महायान था. तो हीनयान जो है बुद्धा को एज अ फोर्स, बुद्धा को एज अ ह्यूमन ट्रीट करते थे. रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं लेके आए थे, लेकिन महायान वाले जो है रिलीजियस एस्पेक्ट ले आए थे कि बुद्धा को गॉड मानना शुरू कर दिया था. तो उस बेसिस पे थोड़ा बेसिक चीज पता होनी चाहिए. सो लेट्स चेक द स्टेटमेंट्स. डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, हाँ ये सही है. ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई बोधिसत्व का कंसेप्ट ही महायान से एसोसिएटेड है. इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, जरा फर्स्ट एंड थर्ड तो कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि डिफिकेशन हो रहा है तो इमेज वर्शिप तो होगी वहां पर, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो एक साथ आएंगे. चलो सेकंड आपको नहीं भी पता. देखो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि जब स्टेटमेंट्स पेयर बनते हैं तो पेयर इन मस्ट गो टुगेदर. इफ टू स्टेटमेंट्स आर इन पेयर देन दे मस्ट गो टुगेदर. फर्स्ट में बोल रहा है डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, थर्ड में बोल रहा है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स. तो भाई जब डिफिकेशन कैसे हो रहा है, इमेज वर्शिप से हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड मस्ट गो राइट एंड आंसर बिकम्स डी. तो सेकंड नहीं भी पता, बट फर्स्ट एंड थर्ड तो इसी में है ना, तो इसके बेसिस पे भी अपना आंसर हो जाएगा डी. सो विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया विच ड्यूरिंग द ग्रुप द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. चलो भाई फोर्स्ड लेबर के बारे में बोल रहा है, ठीक है. लास्ट से पढ़ते हैं. द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज अ फोर्स्ड लेबर. ओके. द फोर्स्ड लेबर वाज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस. ओके. इट वाज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन. भाई कितना स्पेसिफिक हो रहा है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, काठियावाड़ रीजन इतना बड़ा है, वहां कहीं होता ही नहीं था, टोटली एब्सेंट था. भाई इट इज absurd. It becomes wrong. It was considered a source of income tax for the state, a sort of tax paid by the people. कि भाई ये टाइप का टैक्स है जो लोग उसे पे करते थे. तो ठीक है भाई, ए सी और डी तीन स्टेटमेंट्स हैं. हम तीनों में से क्या है कि जो है अपना कोई एक आंसर होगा. अब इसमें कि भाई ठीक है, कोई एग्जाम टाइम सिचुएशन में अगर आप बैठे हो तो इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई क्या लॉजिक होगा. तो चलो देखते हैं. वैसे द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स्ड लेबर. भाई सिर्फ ये कितना स्पेसिफिक हो गया है कि एल्डेस्ट सन को भेजना है. किसी क्या पता किसी की डॉटर हो, सन ना हो, तो वो क्या विष्टि, अगर उसको विष्टि पेतर नहीं होगी तो वो विष्टि नहीं दे रहा. तो इट बिकम्स ऑल्सो वेरी नैरो. तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक ऑल्सो आई विल मार्क इट इनकरेक्ट. अब या तो ए हो रहा या सी हो रहा. एंड अब जब कंफ्यूजन है कि भाई ए को मार्क करो या सी को मार्क करो. अब फोर्स्ड लेबर है तो चलो वीकली वेजेस, अब फोर्स्ड लेबर भी है वीकली वेजेस भी है, तो पैराडॉक्सिकल हो गया कि भाई किसी से आप फोर्सफुली काम करवा रहे हो और आप उसे वेज भी दे रहे हो, वीकली वेजेस दे रहे हो, तो इट ऑल्सो बिकम्स पैराडॉक्सिकल. तो बाय दिस लॉजिक ऑल्सो स्टेटमेंट सी बिकम्स रॉन्ग एंड आई वुड मार्क
ए। भाई देखो, जब आपको ना देखो 35 क्वेश्चन तो नॉलेज से अटेम्प्ट करने हैं, बट 55 क्वेश्चन तो होंगे जो आपको लॉजिक से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 80 अटेम्प्ट कर दिए पेपर में, आपको भाई 10 से 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। अब 10 से 12 क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ थोड़ा फोर्सफुली आपको लॉजिक एस्टेब्लिश करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो उसके बेसिस पे जाके ही जो है फर्दर आंसर आता है। तो इन सच क्वेश्चन टेक द रिस्क, भाई रिस्क लोगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। सो रिस्क जो है वो आपको फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो थोड़ा एक्सैजरेटेड रिस्क हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंडेड रिस्क हो जाएगा, बट यस इट विल हेल्प यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धिस्ट कल्याण मंडप was a notable feature in the construction in the temple construction in the kingdom of। तो भाई इसका आंसर तो मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे तो, बट ठीक है, those who are watching it for the first time, there are certain themes of UPSC जो यूपीएससी को बड़ी प्यारी है, they are the favorite themes of UPSC, like विजयनगर, कृष्णदेव राय, गांधी जी, अशोका, ठीक है, अरुणाचल, अंडमान एंड निकोबार। तो भाई ऐसी थीम्स है जो यूपीएससी को पसंद है। तो वैसे तो कल्याण मंडप इज स्टडी थीम, भाई हम ये शायद 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इन केस यू हैवंट रेड और चारों ऑप्शंस में से अगर आपको कोई ऑप्शन चूज करना है तो इट मस्ट बी विजयनगर, बिकॉज इट इज समथिंग विच यूपीएससी फेवर्स, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, एंड द फेवरेट थीम्स आर लाइक अदर मेजरली दे आर द आंसर्स। तो भाई 99.9% चांस हो रहा कि भाई यही आंसर होना चाहिए विजयनगर पे। तो आंसर बिकम्स डी। Statement number 12, consider the following statements. In the revenue administration of Delhi Sultanate, and in charge of revenue collection was known as Amil। तो भाई ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें चलो देखते हैं कुछ लॉजिक लगता है क्या। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। भाई सबसे पहली बात तो ना, जब भी ये बात करें कि सर्टेन कुछ चीज है वो इंडिया के नेटिव है या इंडिया के इंडिजिनस है, स्पेसिफिकली इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो डेट स्टेटमेंट्स आर जनरली इनकरेक्ट। भाई बोल दे रहा कि भाई कोई क्रॉप है एक्स, वो नेटिव थी इंडिया की, भाई दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब बोल दे रहा कि भाई जैसे इतना सिस्टम है वो इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, भाई इतना सिस्टम क्या कभी कहीं और इंडिया, मतलब जैसे मुस्लिम्स ये जो अपने इन्वेडर्स है, जैसे ये अपने क्या कहते हैं, ये जो स्लेव डायनेस्टी थी या खिलजी डायनेस्टी थी, क्या इनसे पहले कोई डायनेस्टी नहीं थी जो आउट ऑफ इंडिया जो रूल कर रहे हो, तो क्या पता वहां आ गया हो। तो इन द सेंस कि भाई समथिंग विच इज इंडिजिनस टू इंडिया, ठीक है भाई, यहाँ यूपीएससी जनरली प्ले करता है, एंड दैट स्टेटमेंट्स आर जनरली इनकरेक्ट, सो सेकंड स्टेटमेंट्स बिकम रॉन्ग, एंड बाय दिस आल्सो आई वुड एलिमिनेट, या तो भाई बी और डी को मैंने एलिमिनेट किया, या तो आंसर हो रहा ए या आंसर हो रहा सी। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। भाई मीर बख्शी का ऑफिस है और खलजी की, पहली बात तो इसमें दो फैक्ट है, चलो फैक्ट तो चलो उसमें भी है, तो मीर बख्शी हो जाए, खलजी सुल्तान के टाइम भी हो जाए। तो भाई मीर बख्शी जो ऑफिस है वो अपना आई गेस पुलिस वाला डिपार्टमेंट का है। तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, शायद पुलिस का है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई और है, बट हाँ भाई वो खलजी सुल्तान से टाइम पे ही आएगा। तो उससे पहले जो अपनी स्लेव डायनेस्टी थी उसमें भी तो आ सकता है, फिलोसफी तो सबकी सेम ही थी उनकी। तो उस बेसिस पे क्या है कि इफ आई वुड हैव टू चूज कि भाई बिटवीन ए में चूज करना है सी में चूज करना है, सो आई विल गो विद ए। कि भाई जो दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली सल्तनत देखो बहुत ब्रॉड है, दिल्ली सल्तनत पूरा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहाँ से आता है, स्लेव डायनेस्टी से लेके अपना ये क्या कहते हैं अपना स्लेव हो जाए, उसके बाद खिलजी हो जाए, तुगलक हो जाए, तो ये इसमें सब आते हैं। लेकिन यहाँ जो है खिलजी जो है स्पेसिफिक हो गया है, तो आई वुड प्रेफर कि भाई स्पेसिफिक की जगह ब्रॉड को लो, कि ब्रॉड में काफी बड़ा टाइम फ्रेम है, तो वहाँ पॉसिबल है। बट स्पेसिफिसिटी में क्या है ना कि भाई एक्सचेंज कर सकते हो आप, खिलजी तो बहुत ईजी है, क्या पता स्लेव हो यहाँ पे, तो इट इज वेरी इजी टू एक्सचेंज। तो विद दिस लॉजिक ऑल्सो आई विल मार्क आंसर ए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहे हैं कि सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शहीद अहमद सरहिंदी। ठीक है भाई, अब इसमें से इस स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे, वेन एवर यू विल रीड दिस स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, पढ़ने में लगेगा नहीं भाई कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो क्या पता कबीर भाई इन्फ्लुएंस हुए हों, ठीक है कबीर जी, भले आपको टाइमलाइन नहीं पता जीसीपी की, बट इफ यू रीड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फाइंड इट कि भाई हाँ बहुत मॉडर्न स्टेटमेंट है,
इट इज पॉसिबल दैट संत कबीर was influenced by। बट ना, जब भी हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हम मॉडरेट चीजें पढ़ते हैं। यूपीएससी क्या करता है, यहाँ पे डेलिबरेटली कुछ ना कुछ एक वर्ड लगा देता है जो उस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। यूपीएससी कुड हैव रिटन दिस स्टेटमेंट कि संत कबीर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी, बट यूपीएससी ने यहाँ क्या डाल दिया, ग्रेटली। जैसे वो वर्ड्स है ना, ड्रास्टिकली, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए, या फिर सिंगल हैंडेडली, ये उसी की तरह है कि भाई अगर डालना होता, स्टेटमेंट को सही बनाना होता, तो इट मस्ट हैव बीन सेंट कबीर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सर हिंदी। तो भाई ग्रेटली डालने की क्या जरूरत थी, मतलब तो वही बन रहा है ना। तो वाई यूपीएससी हैज पुट दिस वर्ड एडिशनली, ग्रेटली क्यों डाला यूपीएससी ने? तो इट इज इंसर्टेड जस्ट टू बिकॉज कि भाई वो स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें क्या है कि भाई क्या तुक्का है, क्या लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यूपीएससी डेलिबरेटली सर्टेन वर्ड्स डालता है जिससे कि वो स्टेटमेंट गलत बनती है। सो सेकंड इज रॉन्ग, या तो आंसर ए हो रहा है या आंसर डी हो रहा। अब संत निम्बरका वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, एंड आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, जब भी यूपीएससी से कंटेम्पररी की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक क्वेश्चन और आएगा, यस दादू दयाल वाज कंटेम्पररी टू दिस बीरबल, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो भाई इन क्वेश्चंस में जब भी यूपीएससी कंटेम्पररी की बात करता है, वो 99.9% गलत होता है। तो विद दिस आल्सो आई वुड मार्क इट रॉन्ग एंड आंसर बिकम्स डी। आई होप you are getting this right until now. Now let's to refers to question number 14. With reference to British colonial rule in India, consider the following statements. तीन statements हैं. Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the। ठीक है भाई, आप कुछ चीज आप जैसे सॉल्ट लॉज जो है ब्रेक किए थे, या फिर सिविल डिसोबीडियंस के टाइम के मूवमेंट में जब लॉज ब्रेक किए, तो सबसे पहला ऑब्वियस, अगर आप रिप्रेसिव स्टेट हो तो सबसे पहले आपका ऑब्वियस जो पॉइंट हो रहा है या जो एक्शन हो रही है, क्या हो रही है, अब जो वो इंस्टीट्यूशन है उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दो। सो बाय दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। उस लॉजिक के बेसिस पे ठीक है कि भाई ये बहुत वो है कि भाई ऑब्वियस चीज है कि भाई आप लॉ ब्रेक कर रहे हो तो आपकी इंस्टीट्यूशन को ही डिक्लेयर इन कि आप लॉ ब्रेक कर रहे हो, एंड उस बेसिस पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो स्टेटमेंट 3 बिकम्स करेक्ट। अब दूसरे पढ़ते हैं। इन लॉस इन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग वॉर फॉर इन वर्ल्ड वॉर। इंडियंस को भाई रिक्रूट करने के लिए सपोर्ट नहीं किया था गांधी जी ने। सो गांधी जी इज हेविली क्रिटिसाइज फॉर दिस कि भाई जब भी वर्ल्ड वॉर की बात आई थी तो उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट किया था। तो दिस इज समथिंग विच वी रीड इन स्पेक्ट्रम, या फिर जब भी मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ये गांधी जी का क्रिटिसिज्म ही इसलिए होता है कि भाई उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था कि भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि वी शुड हेल्प देम इन द टाइम ऑफ नीड, या जब उनका थोड़ा समस्या वाला टाइम चल रहा। So this is something which we read from while reading the Lakshmi, like while reading the modern history. So this is something which you must know. ठीक है? So this becomes wrong. Yeah, second becomes wrong. So answer becomes B. And first पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी was instrumental in the abolition of a system of indentured labor। भाई पॉजिटिव चीज़ है और महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, तो यूपीएससी ऐसे गलत तो दिखाएगा नहीं कि भाई महात्मा गांधी ने इंटेंजेड लेबर के बारे में कुछ किया ही नहीं था। तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट वन बिकम्स करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थोड़ा इसमें आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंटेम्प्रेरी चीज़ों की कि भाई उस टाइम पे क्या फिलोसफी चल रही थी किसी इंडिविजुअल की। एंड स्पेसिफिकली गांधी जी बहुत फेमस थी मैं यार यूपी इसमें अपना मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यू मस्ट बी नो कि भाई उनका किसी एक ब्रॉड चीज़ पे लेकर क्या व्यू था, तो ये आपको पता होना चाहिए एंड आंसर बिकम्स बी। तो ये वही है कि नॉलेज प्लस एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 भाई, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता तो आता है, वरना अगर नहीं आता तो स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है। सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। भाई इसमें कोई लॉजिक बताने वाली वैसे कोई चीज नहीं है, अगर ये कि इफ यू नो दिस क्वेश्चन यू नो दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज स्किपेबल। इसका आंसर वैसे डी है, बट या चलो इसमें कोई एप्टीट्यूड वाली चीज तो नहीं थी। अभी यह देखो, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। भाई टाइटल जो है तानसेन का अकबर ने दिया था उनको, तो इट इज पॉसिबल कि भाई नाम बदल दो किसी का भी, क्या पता किसी और ने दिया हो। बी पे आते हैं, तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस।
भाई तानसेन है, उन्होंने ध्रुपद बनाई थी, हिंदू रोड्स एंड गोडेसेस। अब ये बात कर रहा है ट्रम्पोज की बात कर रहा है, तो भाई पॉसिबल है ना। तो इट इज नॉट कि भाई आप इसे नरेट कर सकते हो कि भाई तानसेन ने तो बनाया ही नहीं। इट इज नॉट दैट इजी टू नरेट इट। सो बाय दिस लॉजिक बिकम्स रॉन्ग। भाई एक ध्रुपद भी बनाई हो तो स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग, विल रॉन्ग, स्टेटमेंट विल बिकम करेक्ट। तो इन द बेसिस ऑफ बी, और भाई तानसेन इतना बड़ा नेम है, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नेगेट। तानसेन कंपोज ऑन हिज पैटर्न्स। भाई जो अपने पैटर्न है, फॉर एग्जांपल जो इनसे पहले राजा के अंडर ये काम करते थे या फिर बाद में अकबर के अंडर ये काम करते थे, तो देर इज पॉसिबिलिटी ना कि भाई इतना सारा जो इनका वर्क एक्सपीरियंस है किसी एक मोमेंट पे या किसी एक टाइम पे उन्होंने अपने पैटर्न के लिए कोई गाना बना दिया। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई ये स्टेटमेंट ठीक ही होगी। क्रॉस लगाने का मतलब है भाई इनकरेक्ट पूछा ना, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया था। चलो ठीक लगा देते हैं। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, ये बोल रहे कि तानसेन ने ना काफी राग बनाई थी। भाई ठीक है, इतने बड़े नेम है यार, कहीं भी बना दी होगी। इसको तुम कैसे मना कर दोगे भाई तानसेन ने कोई राग ही नहीं बनाई। All three statements are very moderate. They are difficult to narrate. But first is something which is full of fact. भाई टाइटल जो है तानसेन का वो अकबर ने दिया था, क्या पता किसी और ने दिया हो। इट इज समथिंग विच इज इजी टू ट्वीट एंड आंसर बिकम्स ए। भाई इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सोचना और देखना कि भाई इन तीनों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत बनाई जा सकती है। ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर एक्सप्लेन, ओवर जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे। इफ यू विल ट्राई टू ओवर जस्टिफाई एनी ऑप्शन, तो भाई थोड़ा टेंशन वाली बात है, वहां पर फिर गलती होने के चांस ज्यादा है। बट जस्ट गो विद द थिंग कि भाई ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, एंड उस बेसिस पे फिर इजीली आंसर भी निकल जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो भाई कौन थे ये? अब ये जो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट वाली बात आती है ना, अब ठीक है कि अब जैसे ना फेमस थीम तो अकबर भी है, जहांगीर भी है। तो अब दोनों में से फेमस थीम क्या है? अकबर है। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो यू कैन गो विद द आंसर अकबर। मतलब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर में कि भाई जहांगीर को पेंटिंग का बड़ा शौक था, स्पेशली इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स के बारे में, तो यू वुड बी नोइंग कि भाई इसका आंसर सी है। बट इफ यू आर मार्किंग आंसर बिटवीन ये तो बी या सी में से तो ये आंसर मार्क कर रहे हो, अगर आप आंसर इसका बी मार्क करते हो, देन यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ कि भाई आप ट्रैप्स यूपीएससी के पढ़ रहे हो। बट भाई 100% एप्लीकेशन तो नहीं है, देर विल बी एरिया जहाँ डेविएशंस होंगी। तो वो डेविएशंस थोड़ा आपकी जो स्टैंडर्ड नॉलेज है वो इसका बेट करेगी, तो वहां से ये चीज सॉल्व होगी। सो इसका आंसर बन जाएगा सी। सी मतलब बन जाएगा क्या है? हाँ, है ही इसका आंसर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? ठीक है, टेम्परेट अल्पाइन जोन। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। अब ठीक है भाई, इसमें ना थोड़ा वही है कि अब लॉजिक तो मैं बताने जाऊँ बहुत एग्जैजरेटेड होगा। ये जिसको मैपिंग आती है ना, ये उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि यार इसमें ना मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। अगर ये आपको पता है तो पता है, और नहीं पता तो देन स्किप सच क्वेश्चंस। इसका आंसर तो वैसे वैसे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। तो अब इसमें कोई लॉजिक तो मैं आई वुड नॉट से कि भाई कोई लॉजिक यहाँ पर लगाऊंगा कि भाई 3 ईस्ट दिए हुए हैं, थोड़ा साउथ या नॉर्थ दिया हुआ है, तो उस सेंस में तो कोई लॉजिक मैं इसमें लगाने वाला नहीं हूँ। बट भाई ये कि किसी की अगर मैपिंग की हुई है, मैपिंग किसी ने की हुई है अच्छे से, और वो इमेजिनेशन कर सकता है, तो भाई पॉसिबल है कंप्लीटली। पहली बात तो बोला कि कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, टेम्परेट भी है ठंडा भी है अल्पाइन में। चलो लॉजिक बता दें भाई, मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है अपना असम में है। वहाँ तो भाई पहली बात तो वहाँ बारिश इतनी होती है कि वो टेम्परेट अल्पाइन जोन तो नहीं हो रहा, अल्पाइन जिसे बोलते हैं माउंटेन वाला जोन। तो भाई हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के पास में है, तो इसका अल्पाइन जोन से तो कोई एसोसिएशन नहीं है, तो फर्स्ट बिकम्स रॉन्ग। नामदफा नेशनल पार्क है, ये अपना अरुणाचल में है, तो इट इज पॉसिबल कि भाई वो एरिया शायद आ जाए वहाँ पे। उसके बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क है, ये अपना वेस्ट बंगाल में। भाई इसका भी कोई चांस नहीं बनता कि भाई अल्पाइन कैटेगरी में आएगा। टेम्परेट भी होना चाहिए, वो अल्पाइन भी होना चाहिए। चलो नाम दफा एक बार के लिए मान सकते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये शायद हिमाचल में, आई गेस, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल। वैली ऑफ फ्लावर्स, हाँ ये वैली ऑफ फ्लावर्स है।
अब थोड़ा मैप में देख लो कि भाई ये अपना हिमाचल यहाँ पे है और अरुणाचल यहाँ पे है। तो और ये वैसे भी बारिश वाला एरिया है, यहाँ पर बारिश आती है, अपनी साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादा जल्दी आती है। तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई थोड़ा ऐसे लिंक बना के ना फिर उसके बेसिस पे आंसर निकाला जा सकता है, एंड आंसर बिकम्स डी। तो ऐसा ही है कि भाई जब क्वेश्चन जो है ना 90 अपनी रेंज क्लिक नहीं होती एंड वी हैव टू सोल्व मच मोर क्वेश्चंस, तो थोड़े ऐसे लॉजिक बिठाने पड़ते हैं लेटरल थिंकिंग के थ्रू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 19 पे है कि अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर किसके अंडर है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी फेमस, एंड इसमें थोड़ा एक ऑड वन आउट का बताता हूँ। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। भाई यूपीएससी ने 3 ऑप्शन तो इतने बड़े बड़े बना दिए, एक ऑप्शन बिल्कुल छोटा सा बनाया है। क्यों बनाया है? सोचो अपने आप से। बनाने में तो भाई चौथा भी कुछ बड़ा डाल सकते थे, जैसे साइंस एंड टेक डाल दिया, स्किल डेवलपमेंट डाल दिया, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ और बड़ा नाम डाल देते हैं, कुछ फेमस सा नाम, कोई बड़ा सा नाम डाल देते हैं। बट यूपीएससी ने क्या किया, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा सा नाम डाल दिया इन 3 बड़े जायंट्स के बीच में। क्यों किया भाई? ये ओड वन आउट है। दिस इज समथिंग विच आई से कि ओड वन आउट है, एंड दिस इज द आंसर, नीति आयोग। ये क्वेश्चन अभी 2024 में दिखाऊंगा आपको, जहां पर बॉर्डर की बात होगी, भाई लोनेस्ट बॉर्डर कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन वहां भी आएगा इस टाइप से। ये भाई 3 तो छोटे छोटे हैं, एक बहुत बड़ा है। तो ये ओड वन आउट यूपीएससी खेलता है भाई, कोई एग्जैक्ट कोई लॉजिक नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम द पीवाईक्यूज। तो यस, थोड़े आंसर ऐसे भी टेढ़े तरीके से निकाले जाते हैं। तो सी इज द आंसर। 21 जून के टाइम पे सन रहा होगा। शाइन्स वर्टिकली, या तो भाई देखो पढ़ो, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड, या तो आंसर सी या डी में से होगा। डज नॉट बिलो सेट द ओरिजिन, डज नॉट सेट बिलो द ओरिजिन, या तो आंसर ए या बी में से होगा। तो पेयर बन जाए, या तो ए या बी में से कोई आंसर होगा या सी या डी में से कोई आंसर होगा। पहली बात है 21 जून, तो चलो पढ़ते हैं। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भाई 21 जून में नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कैसे वो वर्टिकली ओवरहेड होगा? तो डी बिकम्स रॉन्ग। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर। भाई इक्वेटर के ऊपर नून में होता है, मतलब वर्टिकली ओवरहेड करता है। तो भाई वही है कि अपना जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, तो वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर तो नहीं होना चाहिए। अब बचे ए या बी। अब 21 जून है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद आर्टिक सर्कल। इट सेज डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्टिक सर्कल। और हम पढ़ते भी हैं कि भाई 6 महीने की जो है अपनी लाइट रहती है वहाँ पे। तो बाय दिस लॉजिक आंसर बिकम्स ए। अब इसमें थोड़ा आपको नॉलेज वाला भी पार्ट है कि भाई आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। सो भाई सी और डी तो आंसर नहीं मार सकते आप कि इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ वर्ड उठा रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ। इट मस्ट बी लाइक एसेंस आपने इसकी देखी है स्टेटमेंट्स की। तो और वैसे भी पेयरिंग बनती है कि भाई थीम यहाँ पर सेम है। तो आंसर ए या बी में से हो रहा है, या आंसर सी या डी में से हो रहा है। तो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस देन इट इज ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 25, माई थ्रोट इज नॉट डूइंग गुड। तो थोड़ा अगर वॉइस का बीच में स्टैमरिंग आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई डोंट वांट टू डिले द वीडियो, सो आई एम रिकॉर्डिंग देम even with a sore throat, so just bear with the voice. Which one of the following groups of plant were domesticated in the new world and introduced into the old world? भाई न्यू वर्ल्ड क्या है? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें हुआ है। और ओल्ड वर्ल्ड क्या है? जो थोड़ा जिसे ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन हिस्टोरियंस है वो थोड़ा नेगेटिवली दिखाते हैं कि भाई ये पिछड़े एरियाज हैं, ये बैकवर्ड एरियाज हैं, यहाँ पर इनकी थिंकिंग पुरानी है। सो दिस इज समथिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड कौन सा है? जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है और उसे ओल्ड वर्ल्ड में लेके आए। न्यू एंड ओल्ड का भी थोड़ा ये ना कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड को ये न्यू दिखाते हैं और ईस्टर्न जो अपना ओरिएंटल कल्चर है उसे ओल्ड दिखाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। रबड़, कॉफी एंड वीट। भाई वीट तो ऐसा कुछ है कि जो हम आईवीसी में भी पढ़ते हैं, तो ये ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस कैसे लेके आए? तो इट बिकम्स रॉन्ग। कॉटन इज समथिंग विच वी रीड कि भाई आईवीसी में इसके एविडेंस मिलते हैं, तो इट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। फिर कॉटन फिर से आ गया, एंड दिस इज समथिंग तो टोटवा रबर। एंड वी रीड कि भाई जब भी हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जब यूरोपियंस का एडवेंट पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि भाई टोबैको, रबर ये सब वेस्टर्न लेके आए थे। इवन कोकोआ भी जो है मेजरली, वैसे बाबा बुदान लेके आए थे कॉफी बीन्स को इंडिया के अंदर, बट जो मेजरली कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर वो हुआ था अपना ब्रिटिश या ये यूरोपियंस के आने के बाद। तो आंसर बिकम्स ए।
ट्रॉफी पढ़ लेना भाई, ट्रॉफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। सो क्वेश्चन नंबर 22, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। पहली बात तो ओनली के बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज ठीक है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। चलो भाई, तीनों में ही ओनली की बात कर रहा है, तो डी तो नहीं हो रहा है इसका आंसर। डी क्यों नहीं हो रहा? तीनों में फैक्चुअल चीजें हैं, तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, तो इट इज पॉसिबल कि कोई एक गलत हो जाए, कोई ठीक है, तो उस बेसिस पे ऐसा हो रहा, तो डी तो नहीं हो रहा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई 22 अपना है ना ये, तो ठीक है। एशियाटिक लोइन है, ये तो हमें पता है कि भाई गिर के अंदर ही मिलता है, और तो कहीं है नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। या तो आंसर ए हो रहा है या सी हो रहा। वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, भाई वन हॉर्न राइनो अपना यहाँ पर जब आते हैं, राइनो का मेजरली प्लेस ही है भाई, यहाँ तो बांग्लादेश भी है, वो तो बांग्लादेश में भी जा सकता है, यहाँ भूटान है, वो तो भूटान में भी जा सकता है, यहाँ म्यांमार है, वो म्यांमार में भी जा सकता है। तो भाई उसको तो ये तो नहीं कि भाई तुम काजीरंगा मानस और आंध्र में रोक लिया, वो तो आसपास कहीं भी जा सकते हैं। सो बाय दिस लॉजिक ऑल्सो इट बिकम्स रोन, एंड इंडोनेशिया सुमात्रा में भी पड़ते हैं जी भाई, वहां भी मिलता है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो बिकम रोन, एंड आंसर इज ए। अब इसमें थोड़ा पता होना चाहिए भाई बेसिक के बारे में, कि भाई अभी जानवर है, तो यहाँ तो भाई पास में ही भूटान है अपने, पास में बांग्लादेश है, पास में म्यांमार है, तो भाई ट्रेवल करता है वो तो कहीं भी जा सकता है वो, तो बाय दिस लॉजिक स्टेटमेंट थ्री बिकम्स रॉन्ग, एंड आंसर इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स, फेमस प्लेस एंड रिवर्स। अब ये वही बात है कि भाई आता तो आता, नहीं आता तो छोड़ देने का, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। तो लेकिन इसमें एक ट्रैप दे दिया है, जैसे हम्पी है, ये हम्पी थोड़ा विजनरी के कंटेक्स्ट में, एंड वी जनरली रीड कि भाई विजनरी के कंटेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं उसको तुंगभद्रा को, ठीक है। अब इसमें ये कि क्या लॉजिक लगाना, ये थोड़ा आपके ऊपर है। अगर मैं तो हम्पी को मैं थोड़ा तुंगभद्रा से एसोसिएट करता हूँ, तो मालप्रभा इज रॉन्ग, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ये, तो आवर आंसर इज ए। अब इसमें थोड़ा लॉजिक फैक्चुअल चीज है, अगर आता तो आता है, नहीं आता तो छोड़ देना इसको। Question number 24. In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in other because quality of public distribution varies from, भाई ठीक है चलो हो सकता है, जो स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम, की भाई स्टेट का जीडीपी है वेरी करता है दूसरे से, ये तो थोड़ा कोई लॉजिक बनता नहीं है भाई। पॉवर्टी हम सेंस करते हैं एक प्राइस के सेंस में करते हैं, इनकम लेवल के सेंस में हम बात करते हैं, तो थोड़ा वो है कि भाई स्टेट का जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, नहीं यार, ये तो वही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि भाई वेरी करते हैं, मतलब जो है ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो है वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, तो ये तो वही है, इनडायरेक्टली उसको बोल दिया, तो क्वेश्चन ये ना हमारा, जो क्वेश्चन तो आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। अब प्राइस लेवल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम, भाई फॉर एग्जाम्पल चीनी है कहीं स्टेट में 40 रुपए, दूसरे में है 45 रुपए, तो ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी हैं कि भाई दूसरी आइटम्स के प्राइस हैं, तो डिपेंड करता है कि भाई, एंड उस लेवल का पर कैपिटा कितना है वो भी डिपेंड करता है, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो उस बेसिस पे थोड़ा एप्लीकेशन लगाना है आपको नॉलेज का, एंड उस बेसिस पे अपना आंसर आ जाएगा बी। बी क्यों है, सी क्यों नहीं है भाई? जीडीपी का अलग चीज़ है, पीसी वही होता है ना, पर कैपिटा इनकम होता है, फिर भी इसको कंसिडर करते हैं, बट जीबीडी जीडीपी बहुत ब्रॉड चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्टेट है, उसका जीडीपी कम है, और वाई स्टेट है उसका जीडीपी ज्यादा है, तो इट इज पॉसिबल ना कि भाई ट्रम्प स्टेट जिसका जीडीपी कम है उसका पॉवर्टी रेट भी कम हो, पॉसिबल है, तो उस बेसिस पे जीडीपी का कोई एसोसिएशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंट है, वो एफिशिएंसी की बात आती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में बताती है, उसका पॉवर्टी रेट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर बन जाता है बी। In the context of which one of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique? cirrus cloud technique है भाई, ठीक है, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल, ये पीवाईक्यू है, ये शायद 2012-13 में भी आया हुआ है, उसके बेसिस पे इट कैन बी सॉल्व इजिली, तो 25 वाला है, ठीक है। सल्फ cirrus क्लाउड थिनिंग है और सल्फेट एरोसोल है, तो इनसे क्या होता है भाई? कमेंट सेक्शन में बताना इसका मेरे को। रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, भाई पॉसिबल है,
ठीक है, पॉसिबल है। क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, भाई आर्टिफिशियल मतलब वो क्लाउड सीडिंग वाली बात कर रहा है, पॉसिबल है। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड। अब भाई कोई इसमें लॉजिक फॉलो करेगा कैसे करेगा? रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, रिड्यूसिंग द एडवर्स, रिड्यूसिंग द ग्लोबल, तीन स्टेटमेंट जो है सेम थीम पे है। एक फोर्थ जो है डिफरेंट है, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन्स। अगर उस लॉजिक पे आप इसको ए लगाते हो, ए इसका आंसर मार्क करते हो, तो दिस वुड बिकम रॉन्ग। बट आपने लॉजिक सही लगाया, लॉजिक क्यों सही लगाया? ओड वन आउट किया, भले लॉजिक लगाने के बाद भी गलत हो जाए तो इस चीज से डरना नहीं है। देर विल बी क्वेश्चन जहां आप लॉजिक लगाओगे एंड दैट विल बिकम रॉन्ग। 60 क्वेश्चन चाहिए, 100 नहीं चाहिए। तो अगर आप लॉजिक, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता क्लाउड थिनिंग क्या है या सल्फेट एरोसोल किस लिए यूज होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो अगर आप उस लॉजिक से ए लगाते हो देन इट इज एक्सेप्टेबल। बट थोड़ा इसमें अप्लाई करते हैं। पहली बात तो भाई स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है कि हम स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल इंजेक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में तो जनरली बारिश नहीं होती, जो बारिश होती है वो मेजरली ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो थोड़ा ये लॉजिक में लगाना है। तो ट्रोपोस्फेयर में होती है, तो बाय दिस ऑप्शन ए बिकम्स रॉन्ग। एंड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो तो भाई लैंड पे बनते हैं और हम चीजें आसमान में छिड़क रहे हैं, वी आर स्प्रेइंग देम इन द लाइक एटमॉस्फेयर। तो भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन से कोई एसोसिएशन नहीं है। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, सोलर विंड का एडवर्स भाई, कहाँ तो हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कहाँ सोलर विंड जो सन से आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसका और इसका कोई एसोसिएशन नहीं बनता। एंड दिस इज समथिंग द रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अब दिस इज समथिंग विच वी रीड जनरली, ये तो करंट अफेयर्स में रहता है या स्टैंडर्ड सोर्सेज में हम पढ़ते हैं। चलो भाई नहीं भी पढ़ा तो योर आंसर कैन वेरी फ्रॉम, या तो आंसर ए ऑप्शन ए होना चाहिए या डी होना चाहिए। बी और सी का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, या तो ए हो रहा या डी हो रहा। अब इसने यूपीएससी ने स्ट्रेटोस्फेयर की बात की है, जब यूपीएससी स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है तो वहां पर थोड़ा आर्टिफिशियल रेन के कंटेक्स्ट में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ट्रोपोस्फेयर वाली चीजें होती हैं। तो विद दिस ऑल्सो आई विल एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड विद दिस आई विल गो विद द डी। अगर यूपीएससी ने इतना दिया होता ना क्लाउड थीनिंग टेक्निक क्या होती है, ये ना दिया होता सल्फेट एरोसोल या स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, तो मैं मार्क करता इसका आंसर ए, भले मेरा क्वेश्चन गलत होता। बट यूपीएससी ने यहाँ पर दिया आपकी हेल्प की, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि ना भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम यूपीएससी गिव्स यू द आंसर्स, तो वहां से आंसर्स मिलते हैं। तो सल्फेट एरोसोल इन स्ट्रेटोस्फेयर, with this I will mark option A incorrect and answer will be D. Today we will be doing this till 26। बाकी जो है दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पायरोलिसिस क्या है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स है, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट है। भाई हम ये पढ़ते हैं वैसे पायरोलिसिस क्या होता है भाई और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है, ये जनरली हम पढ़ते हैं। एंड उस बेसिस पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, मतलब बताऊंगा ही। पायरोलिसिस हम क्लास शायद 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई 7th 8th में हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो विद दैट थिंग ऑल्सो कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल लॉजिक इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो उसके बेसिस पे भी अपना आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, भाई कोई सेंस नहीं बनता इसका। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्निक, भाई इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता। गैसिफिकेशन की बात कर रहा है ना, गैसिफिकेशन की बात कर रहा है, तो एक्सट्रैक्शन का तो कोई सेंस नहीं आना चाहिए इसमें, एक्सट्रैक्शन तो नहीं आना चाहिए। ये बोल रहा है कि भाई पायरोलिसिस है, लिसिस मतलब कुछ चीज को डिस्ट्रॉय करना, लिसिस, ठीक है। और पायरो का मतलब होता है आर, थोड़ा वर्ड ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं इसमें, जैसे पायरो का मतलब होता है आर, फायर, ठीक है। और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, एंड ऑफ लाइफ। तो उस बेसिस पे भी है कि आपकी हेल्प से किसी चीज को खत्म करना, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ये भाई गैसिफाई करना किसी चीज को, तो उसमें एक्सट्रैक्शन तो नहीं आएगा। चलो वर्ड ब्रेकडाउन इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रीलिम्स, भाई वर्ड ब्रेकडाउन से ही 2 से 3 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, समटाइम्स ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इट हेल्प्स। तो अपना इससे कि भाई एक्सट्रैक्शन तो नहीं होना, ये तो सी हो रहा या डी हो रहा, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक नैरो थीम है, वेस्ट टू एनर्जी एक ब्रॉड थीम है। हाइड्रोजन एक ठीक है ग्रीन एनर्जी के सेंस में है, और वेस्ट टू एनर्जी एक लाइक ब्रॉडर सेंस है। और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, हम पढ़ते हैं कि भाई वहाँ ऐसा कोई पायरोलिसिस हमने कभी पढ़ा नहीं, जब हम फ्यूल सेल पढ़ते हैं, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं,
वहां हमने तो पायरोलिसिस पढ़ा नहीं। पायरोलिसिस हम पढ़ते हैं कि भाई समथिंग विच वी आर बर्निंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो उस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा माई थ्रोट इज नॉट सपोर्टिंग टुडे। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन, अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व नहीं किया है देन यू मस्ट सॉल्व इट बाय योर ओन। आगे मत बढ़ना। आगे वाले जो अपने 74 क्वेश्चन है, सॉल्व देम, ट्राई टू सॉल्व देम एटलीस्ट। जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस। भले गलती होती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन वीडियोस के थ्रू यू कैन करेक्ट दोज मिस्टेक्स, बट या जस्ट पैसिव लर्नर नहीं बनना। यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब के लिए जय हिंद एंड स्टडी वेल, लर्निंग।